Good evening, class. So, as we were studying solution chapter 2 of your chemistry, in which we were studying about how to measure the concentration of any solution, and we have learned total 5 methods till now. First is our mass percentage, second is volume percentage, third is mass by volume percentage, fourth molarity, and fifth molarity. In which I have told you that molarity and molality is very important. So, hope all of you have watched the video, my previous video, and you have also learned and solved the numericals from your textbook. So I also told you that there are two more methods to find the concentration of any solution, among which one of the important is mole fraction. Okay, how do you have to study about the mole fraction? So just suppose that any solution constitutes of solute plus solvent. Okay, solute plus solvent, in which I have told you that solute is denoted by capital A and solvent is denoted by capital B. Okay, तो यदि आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हो तो एक फिक्स अमाउंट उठकर डिसॉल्व कर रहे होंगे एंड उनका मॉलिक्यूलर मास भी होगा, तो हम उनका नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो जस्ट सपोज दैट अ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इज Na and a moles of the solute is Nb. That gives in that solution the number of moles of solute is denoted by Na and the number of moles of solvent is denoted by Nb. So the mole fraction of solute and mole fraction of solvent we have to calculate. Mole fraction of solute or A is denoted by Xa. Okay, so you must remember that a mole fraction is denoted by X. Okay, so the mole fraction of A is equal to Xa is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent, that is equal to Na upon Na plus Nb. जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं कि क्लास के कितने बच्चे हैं एंड कितने मार्क्स एवरेज हैं, या फिर हम जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि यदि आपका 500 मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 600 तो आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. दैट इज सिमिलर टू एज दैट वे. So the mole fraction of A is calculated, solute is calculated as number of moles of A number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है. ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी and the number of mole fraction of B is xB is equal to number of moles of solvent divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent, that is Nb upon Na plus Nb. So by this method we have to calculate the mole fraction of solute and solvent. Now it is not important that only two substances or two compounds are present in that solution. Two or more than two substances might also be present there. कि just suppose there are A, B, C, among which the number of moles of N, this is Na, this is Nb and this is Nc. So the mole fraction of A will be calculated as number of moles of A divided by total number of moles Na plus Nb plus Nc. So by this method we have to calculate. So you can study like number of moles of A divided by total number of moles. Now another important factor is that the mole fraction, the sum of mole fraction of all these substances equal to 1. उस solution में कितने भी substance present हो और उनका mole fraction का यदि आप sum करोगे तो वो हमेशा 1 आता है. So you can also write it like that, summation of mole fraction is always equal to 1. So this is an important another factor. So hope this is clear to all of you how we have to calculate the mole fraction. So let us take an example of your textbook. The question is given as a calculate the mole fraction of C2H6O2, that is ethylene glycol, in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass. ठीक है, तो 20% क्या है हमारा C2H6. Hope all of you have noted down it. So let us solve the numerical and we have to understand that how the mole fraction is calculated. So question it is saying that C2H6 is 20% of the solution by mass. So you can assume here, let solution is of 100 gram. Let solution is of 100 gram. Okay, among which 20 ग्राम यानी 100 ग्राम का 20% क्या है हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 एंड बाकी का 80 ग्राम जो है वो वाटर है H2O. अब सॉल्यूशन बोला तो ऑब्वियस सी बात है C2H6O2 को वाटर में डिसॉल्व किया गया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
C2H6 मान लीजिए कि ये A है and this is P because solute is denoted by capital A and solvent is denoted by B. So we have to calculate its molecular mass and its also molecular mass. So Ma जो कि molecular mass रहता है, we have to calculate and this is Mb. तो Mb तो 18 होता है water का molecular mass. For this carbon 2 times, तो 2 into 12 plus hydrogen 6 into 1 and oxygen 2 into 16. So 24 plus 6 plus 32. So it is 62. It is 62. Okay. So now we have to calculate the number of moles of ethylene glycol and number of moles of water first of all. So Na is equal to 20 given mass upon molecular mass 64 and Nb is equal to 80 upon 80. Okay, so we have to calculate the value of this. So class, when we calculate the Na, it is 0.3125 and when we calculate the number of moles of water, that is 4.44. So we have to calculate the mole fraction of A and mole fraction of B. So XA is equal to Na upon Na plus Nb. Okay, so the value of the we have to place the value of Na and Nb in the equation. So XA is equal to number of moles of ethylene glycol is equal to 0.3125 divided by 4.44 plus 0.3125. So after solving we get it 0.068. Number of moles of ethylene glycol is 0.068 and Xb can be calculated as either 1 minus Xa क्योंकि हमने पढ़ा था Xg plus Xa is equal to 1. So you can calculate like this way, or Xb is equal to 4.44 divided by 3.125 plus 4.44. So after solving this we get 0.932 as a number of moles. Okay. So hope this is clear to all of you. Now our last point for the measurement of the concentration of any solution, that is a part per million. Okay, that is part per million. So it is the theory is given in the book. You can read from there also. Last our 7th topic is part per million. Part per million means when you represent a very small quantity with in a very large quantity. ठीक है, यानी कि जब आप बहुत छोटी क्वांटिटी को किसी बड़ी क्वांटिटी के साथ मेजर करना चाहते हो, जस्ट सपोज कि जैसे आपने कह दिया कि 1 लीटर वाटर में 2 ग्राम NaCl है. ठीक है, तो ये इसमें यदि हम डिफरेंस देखें तो 2 ग्राम को 2 into 10⁻³ kg में कन्वर्ट कर सकता था एंड यहाँ पे 1 लीटर यानी 1000 ml में, यानी यहाँ तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी को मैंने एक बड़ी क्वांटिटी के साथ क्या मेजर कर दिया. ये सिंपल एग्जांपल आप ले सकते थे कि इसमें आप 2 ग्राम नहीं लिख के हम 2 मिलीग्राम लेते थे. मान लीजिए आपने यहाँ 2 मिलीग्राम लिख देते, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि 2 मिलीग्राम तो बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई और उसमें 1 लीटर पानी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं. तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि जब आप 10⁻⁶ पावर में किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, यानी कि 10⁻⁶ यानी मिलियन की बात आ रही है. 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरोस होते हैं. तो जब आप 10⁻⁶ में इसको कंपेयर कर रहे हैं किसी भी चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट पर मिलियन बोलते हैं. जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, एंड उसमें आपने अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 2 मिलीलीटर में नहीं 2 माइक्रोलीटर या 2 into 10⁻³ मिलीलीटर बेंजीन आपने ऐड कर दिया. ठीक है, वैसे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर. ठीक
ठीक है। अब 1 मिलीलीटर के भी अंदर मैंने और छोटा ले लिया 10⁻³ में, इसको -3 में ले लिया, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कितने जीरो का आ रहा है, 10⁻6 जीरो का आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। सो व्हेन यू कंपेयर अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी विद अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, जहाँ पे 10⁻6 का डिफरेंस आ रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। So you can learn the theory from the book also, and there is also given, and you बस simply आपको यही उसमें यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब आप किसी बड़ी छोटी क्वांटिटी को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के साथ मेजर करते हैं। So here our one topic is over for the measurement of the concentration of any solution. अब हमने solutions के 9 टाइप्स पढ़े हैं on the basis of matter, ठीक है। हमें बुक में टोटल हमको 3 टाइप्स को बेसिकली लेकर के चलना है, जहाँ पे आपका सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा, सॉल्वेंट आपका लिक्विड रहेगा एंड सॉल्यूट आपका तीनों स्टेट में रहेगा। यू हैव टू स्टडी दैट केस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है, कि सॉलिड को जो लिक्विड में डिसॉल्व होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, कैसे वो डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज ओनली वन जो लॉजिक इसमें लगता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसमें यही फंडा काम करता है। अब कैसे, जैसे कि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर एंड एक होता है डाइपोलर या नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर। तो वाटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड, या लिक्विड जो होता है 2 टाइप का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। तो इट मींस दैट पोलर में पोलर ही डिसॉल्व होगा एंड नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिसॉल्व होगा। अब पोलर एंड नॉन पोलर का मींस क्या हो जाता है कि जस्ट सपोज कि आपने HCl ले लिया या वाटर ले लिया, इसमें आपने HCl ले लिया, तो इसमें क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। पोलर लिक्विड का मतलब जैसे आपने वाटर ले लिया, तो वाटर में जब भी हम देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो ये भी पोलर हो गया। तो जिसके ऊपर पोलर चार्ज आ जाए या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए, वो एक दूसरे को डिसॉल्व करेंगे। एंड नॉन पोलर यानी कि जिसके ऊपर चार्जेस नहीं है, जैसे CH4 हो गया, ये नॉन पोलर है, ठीक है। C6H6 बेंजीन हो गया, ये भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिसॉल्व होगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में क्या फंडा फॉलो करता है, फंडा क्या फॉलो करता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इट मींस दैट a polar will only be dissolved in polar and non polar will only be dissolved in non polar, okay। and usually क्या होता है कि in some cases when the solid is inserted in liquid, ये सॉलिड के जैसे पार्टिकल्स इसमें फ्लो डाउन करेंगे, तो ये क्या होता है कि लिक्विड इसके चारों तरफ क्या करता है, कोलाइड बना देता है, ठीक है। कोलाइड का मतलब बाहर जाके उससे चिपक जाते हैं, जिसको एक तरीके से सेटल डाउन कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। Now there are 2 factors which are basically which we study how the solid and liquid can be dependent. So first is the change in temperature and second is our change in effect of pressure. Okay, कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर का जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये है कि प्रेशर का कोई भी इसमें रोल नहीं रहता, नो इफेक्ट, ठीक है। प्रेशर आप कितना भी ज्यादा रखो, कितना भी लो रखो, आपका कभी भी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इस पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो प्रेशर का उसमें कोई भी रोल नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए बहुत ही अच्छा रोल ये है कि हमने लास्ट ईयर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा है, ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा है, जिसमें उसने ये कहा था कि रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। यदि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एंड वो हीट रिलीज कर रहा है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यानी वो लो टेम्परेचर पे फिजिबल है, ठीक है। तो यदि आपका जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है एंड यदि आपने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा। यदि आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो वो रिएक्शन
वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो एट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फिजिबल एट लो टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फिजिबल एट लो टेम्परेचर, ठीक है। जबकि यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी उसको हायर टेम्परेचर में रहने की आदत है, प्रोडक्ट हमारा हायर टेम्परेचर पे स्टेबल है। अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो मेरा प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट पे कन्वर्ट करना शुरू कर जाएगा, यानी वो रिएक्शन नॉन फिजिबल हो जाएगा। तो उसके लिए कौन सा टेम्परेचर ज्यादा अच्छा है, हाई टेम्परेचर अच्छा है। सो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन high temperature is feasible, high temperature is feasible, temperature is feasible। तो ये आपको दो फंडा इसमें रहता है कि वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो लो टेम्परेचर पे होगा बहुत अच्छे से, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो हाई टेम्परेचर पे फिजिबल होगा। So here we have completed our topic solubility effect, solubility of a solid and liquid. In next class we will learn about solubility of a gas and liquid, in which the very important point Henry's law comes. And in the next and our next topic is solubility of liquid in liquid. ठीक है, तो गैस एंड लिक्विड में हमको हेनरी लॉ पढ़ना है, एंड लिक्विड इन लिक्विड में हमको बहुत अच्छे से और भी आगे पढ़ने को मिलेगा। एंड वी हैव टू लर्न इन लिक्विड इन लिक्विड में फिर हमको आगे बहुत सारे फैक्टर्स भी उसके स्टडी करने हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो फॉर टुडे ओनली दिस मच, यू मस्ट रिवाइज दिस टॉपिक फ्रॉम द बुक आल्सो। एंड वन मोर थिंग, many students are not watching the video completely, and many students have not subscribed the channel, and or many students are not commenting their name in the YouTube section. So please take care of this. We teachers are working for you only, and please watch the whole video of all, every teachers. Every teachers are working hard for all of you. And due to COVID-19, there is chances that school might not open in September also. So your study will take place in this way only. So please support us and subscribe the channel for your because we are going to take new steps again now also. Because if you subscribe, then we will be able to take new steps for your better education. Okay guys, take care.